Okay, so my name is Nikhil Chauhan. I am graduated from Georgia, Tbilisi, and I studied in Petra Shatadze, Tbilisi Medical Academy. I completed my 6th year in this teachers hostel, and the reason I stayed here because the food was good, the accommodation was good, the laundry was good, everything was good. Because if there was any flaw in the hostel, if there was any flaw in the food, I would have changed my hostel, and that is not a problem for me, and that will not be any problem for any other students. So the reason for me for staying here was because I want to concentrate only on my studies, and also I want to concentrate on the foreign countries which I also visited. Like in during my this MBBS course, I visited Lithuania, I visited Germany, and also I studied about lot of countries. But for me, the Germany was my biggest priority because I learned German language also. So I wanted my career to go in that particular direction in which I liked. So that was the country that is Germany. So I invested 2 to 3 years of my MBBS in this German language, and I'm well proud of myself because I completed this language and I passed the exam of the German language. But I also have many other opportunities where many other these countries option in which I can go and explore myself. So these are UK, US, Canada, but I am now focused toward a particular country, that is Germany or UK. So I want to build my career over there, and I want to prosper my life in these countries. So how was Georgian peoples and nature here and weather regard? I came from India, so for me everything was new here because the temperature, the climate, the weather, everything was totally different for me because I came from a desertain area. So it was very hot and humid for me. But after coming here, it was bit of snowy, it was bit of winter, bit of cold for me. So I could not this absorb this atmosphere in the first few months. But after few months, I was very well able to adjust myself in this environment in this country. So it was not a big deal for me because we all are survivors, we all know how to accommodate ourselves in this harsh environment. So we can absorb ourselves, we can prosper ourselves in this environment. So Georgia for me, it was new emotion, new country, but it was not a very high standard that I cannot live with. It was normal condition for me also. Okay. So did you face any kind of hate from the people? The only problem that I faced was that language because most of the Georgian, they do not speak English, but the other young generation, they can very well enhance and speak the English language. So for me, the problem was during this transportation, because in buses, in this public transport, in these taxis, there was bit of problem that I faced. But while normal conversation with the college mates, with the classmates, it was not a problem at all that I can say. Okay. So in 6 year you explored everything. You know which place you like more for visiting, Batumi or something. If you want to suggest. Okay, so about the exploring, I can say I am bit of ocean person. I like to live near the beaches. I like to live near the rivers, the lakes, so that I can have a chance to swim and just free flow. But it depends on every person, every student, every other human being, like whom they deserve and whom they want, and the type of environment they want to stay in. So for me, I am the beach person. So here we can see the beaches, we can see the mountains, we can see the rivers, we can see the plateaus, we can see everything. So there are different parts in the Georgia on which I think it is suitable for every person, every human being. They want to live in the Georgia. ओके. और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे और कौन कौन से कंटिनेंट के स्टूडेंट्स अभी हैं पढ़ रहे हैं? जहाँ तक इंडिया की जहाँ तक हमारी ये कॉलेज की बात है, हमारे कॉलेज में जहाँ तक मेरे को पता है लगभग अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं. लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, अपने ये अरेबिया कंट्रीज़ है, अपने अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अपने यूएस कंट्रीज़ हैं, अपने जॉर्जियन जो नेटिव कंट्री है, अपने अज़रबैजान, टर्किश, ये पास पास की जो कंट्री हैं, इन सब के स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में हैं.
तो ये अपना जो कॉलेज है ये पूरा मल्टीलिंगुअल है, मल्टी कल्चरल है। तो यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये पूरा नया इन्वायरमेंट है। अगर तुम ग्लोबली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो तो ये कॉलेज आना बहुत सही है, अगर तुम्हें अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाना है तो। जी। और आपका हॉस्टल में और दूसरे फ्रेंड्स, जब आप बाहर अंदर रह रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जब आप फ्लैट वगैरह में चले गए थे? तो एक्चुअली मैं कभी फ्लैट में गया नहीं, तो मैंने मेरे 6 साल हॉस्टल में निकाले हैं, तो मेरे को 6 साल मेरे हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं मेरे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से बात करता था, उनको एक लेटर लिखता था, तो उस हिसाब से वो एक्ट करते थे और मुश्किल से मुश्किल 1-2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो इसलिए मेरे को कोई ज़रूरत पड़ी नहीं उस हॉस्टल को छोड़ने की, जो कि मेरा हॉस्टल है TCH हॉस्टल, जहाँ पे मैंने 6 साल निकाले हैं। और जो मेरे दोस्त हैं जो अपने अपनी अलग अलग बिल्डिंग में रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स में रहे हैं, उनसे मेरे को सुनने में भी आया था कि इनको दिक्कत है, इनको खुद खाना बनाना पड़ता है, इनको शॉपिंग करनी पड़ती है, तो उसमें इनका टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो मेरे को लगा कि ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपन हॉस्टल में रहते हैं, तो इसलिए मैंने हॉस्टल ज़्यादा अडॉप्ट किया। अब ये करा कि मैं हॉस्टल में ज़्यादा रुकना प्रेफर करूँगा रादर देन स्टेइंग इन अपार्टमेंट। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अच्छा। और MBBS का सफ़र कैसा रहा? अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट आता है ना, एवरेज स्टूडेंट्स रूरल एरिया से, तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे आप? अगर आप किसी भी रूरल एरिया से आते हैं, आप किसी भी अर्बन एरिया से आते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आके अब उनको पढ़ाई करनी है। भले ही आप हिंदी में पढ़ो, भले आप इंग्लिश में पढ़ो। हमारे यहाँ पे कई स्टूडेंट हैं जो रूरल एरिया से भी आए हैं और वो हमसे बहुत ऊपर हैं। वो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएँ, वो हमसे ज़्यादा स्कोर करेंगे, हम भले ही अर्बन एरिया से आए हों, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, तो डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी कंट्रीज़ के किसी भी पार्ट से हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर बस वो फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, और आपको हर बार एक होता है ना कि अपन को अपने पुश दे कि हाँ यू कैन डू इट, वो होता है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी एरिया से आओ, किसी भी पार्ट से आओ। और यहाँ पे आपने सेलिब्रेशन वगैरह कैसे करते थे? जैसे कोई दिवाली वगैरह होते हैं इंडिया में, तो हॉस्टल में ऐसी कोई फैसिलिटी? हमारे यहाँ पे हॉस्टल में आप किसी भी कंट्री से हो, आप किसी भी मज़हब से हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे पूरा हमारा जो हॉस्टल है, मैं जिस हॉस्टल में रहा हूँ, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आपका जो भी मेन फेस्टिवल है उसमें आपको प्योर आपको वो मिलेगी अनुमति कि आपको जो करना है करो, आपको जैसे इन्जॉय करना है करो, आप बस हॉस्टल वालों को इन्फॉर्म करो। और 95% हॉस्टल वालों ने आपको पूरा सपोर्ट दिया है और उन्होंने अपने आप से भी आगे किया है कि हम आपके लिए ये करेंगे अगर आपका ये सेलिब्रेशन है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी कल्चरल से हो, आप किसी भी लिंगुअल से हो, तो इस हॉस्टल में आपको 100% अनुमति मिलेगी कि आप अपने आप को, अपने कंट्री को, अपने रिलीजन को एनहेंस कर सको, फील कर सको, तो उसकी कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई जी। और स्पेशली जी दोबारा आज हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, आपने हम पे सबसे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने, क्योंकि मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था ना, जो मुझे यहाँ पे 9 साल के बाद यहाँ पे ले गया है, और उसमें मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें बहुत सारा जो है वो आपका साथ था। देखो, जो बिल्डिंग्स घर बनते हैं ना, सबसे पहली उनकी जो पहली ईंट होती है ना, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, उनका पहले एक मॉडल बनता है। अगर वो मॉडल आप मेरा ना खरीदते ना, तो आज मैं यहाँ पे ना होता। आज मेरे 111 आप मना भी करेंगे ना तो रूम्स ना होते। और इस बच्चे ने भी वो you know, when I first time make one package I design and I want to sell people's students, nobody buy. He is the one, he trust me and he buy the package. इसने भी वो पैकेज ली. Now you buy from me the package, no? He complete 6 years and I am thankful for God. Now I have more power to make packages for hostel and reach this goal. और हमारी दुआ है आपके साथ, और आप जाएं और जितना भी हो सके, फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ की जो सेविंग है या जॉब आप करेंगे, उसमें से कम 10% जो है आप निकालें लोगों के लिए,
बिलीव मी, अगर 10% जो है स्टूडेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, तो देखें आपको हमेशा ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी बस। और हमारी दुआएं आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। बिजनेस देखो सारा कुछ पैसा ये चीज़ें नहीं होती हैं, इत्मीनान, भरोसा। क्योंकि अगर आप भरोसा ना करते तो हम आज इधर ऐसा ना कर रहे हो। दिल टूट, जिसको कहते हैं ना दिल टूट जाता है, तो दिल टूट जाता है, तो दिल बंधा तो आज हम ओपन। इवन अभी जो मैंने इस साल में नियर बाय 7 से 8 पैकेज बेचे हैं, ना किसी पेरेंट ने मुझे देखा है, ना कोई स्टूडेंट ने मेरे साथ मिलाया है, किसी ने मेरा नंबर दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई इस दौर के अंदर ट्रस्ट कर रहा है, कोई सऊदीया से, कोई कतर से। और अभी मेरे पैकेजेस कौन से हैं, वो फुल पैकेज हैं, अकामोडेशन, ट्यूशन फी, सारा कुछ इंक्लूड। आपने ये पेमेंट देनी है और 6 साल तक बच्चा, और उसमें ये भी हॉस्टल में रहना या बाहर रहना, हम ये तो उसमें चल रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और बस हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते कि आपने जाना है कहीं, नहीं खुश रहो। और कहीं पे भी रहो, साल में 6 महीने में हमें फ़ोन ज़रूर करना, बिल्कुल भैया, और ये तो कहने की अपनी बात लाइफ में एक डॉक्टर ज़रूर बनाना है। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो आप अर्ली स्टेज में या एंड में, कभी भी, जी। लेकिन फैमिली से नहीं। जी, मज़ा जी। तो फिर है किसी और सही को, बात है। किसी उसको जो बन ना पाए, जिसके पास फाइनेंशियली उसको बनाओ। सही बात। हम अंदर खाते में कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका बताने का फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहता था, तो ना किसी ने कहा कि पढ़ लो, ना किसी ने कहा, ना ही फिनंशियल, ना ही पैसा था इतना। तो इसी वजह से उस चीज़ को दूर कर रहे हैं अपने लोगों की। थैंक यू सो मच, कर रहे हैं। थैंक यू। और अब जो बाकी बच्चे हैं माशाल्लाह ये, और जो आपको हम सहूलत नहीं दे सके, कोशिश करेंगे ये जो पीछे रहते हैं कम से कम इनको। बिल्कुल। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने हम पर एतमाद किया रहे, और इतना कोई गलती हो कुछ अरे हो, हमसे कोई नहीं, गलती अंकल, हमसे हुई होगी गलती, हम क्योंकि छोटे ये हैं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हम कल मिले, बाद में फ़ोन करें। जी, ठीक है। लोग तो बहुत ज़िंदगी में मिलते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा जो हैं वो रहती हैं। तो अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करें, ठीक है। Thank you. तो अभी आए, लें जो भी है समोसे वगैरह। इधर आ जाएं आप निखिल के साथ, आते ना प्लीज़। समोसा अभी बता दें क्या लाऊंगा। अभी तो